Good morning, ma'am. Good morning, class. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. While some of you are writing presents are in the chat section. मैम सर का नेट स्लो आ रहा था, अटेंडेंस लग ही नहीं पाई। Okay. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, everyone.
So should we start the class? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. so कल diffraction कर रहे थे. So Ayush, you had some doubt regarding diffraction, right? That topic is still pending. But what I'll do today, I'll start from the basic definition. I'll proceed very slowly and speedily, and all of you write down along with me. Okay? So अच्छे से करेंगे Okay. आज. वही टॉपिक, सेम टॉपिक, एक्सप्लेनेशन अच्छे से और थोड़ा बहुत लिखना भी साथ. और जो न्यूमेरिकल ma'am. था, we will come to that numerical towards the end of the lecture if we are done with our diffraction at single slit, otherwise we'll be tomorrow. Okay, so diffraction. What is diffraction of light? We'll start from the interference. In interference, there are two sources of light. We are taking two slits S1 and S3. Light coming from these two slits superimposed on each other and give rise to interference. Gautam, light coming from the two slits when superimposed over each other, it gives rise to interference pattern. That is one thing. Next topic is diffraction. So diffraction में क्या देखा गया? If the size of slit is very small and it is a single slit, अगर size of slit और obstacle is very small, लाइट का सोर्स रखा हमने, लाइट जहां पे नहीं जानी चाहिए थी सिर्फ इधर से, और स्क्रीन पे इस रीजन में ब्राइट होना चाहिए था, इन रीजन्स में डार्क होना चाहिए था. But what was observed, if the size of slit is sufficiently small, क्या हुआ? इस रीजन में ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस थी, और इधर भी प्रॉपर ब्राइटनेस नहीं थी. There was some blurred brightness over here, and there are alternate bright and dark fringes which were also blurred. जैसे जैसे स्लिट का साइज और रिड्यूस किया, क्या देखा? स्क्रीन पे एक ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न था, और सेंटर में बहुत ब्राइट फ्रिंज थी जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी. और जैसे जैसे हम दूर जाते हैं, एज वी गो अवे फ्रॉम द सेंटर, the intensity of bright fringes are decreased. So how the pattern looks like? This axis is intensity of light, and this axis is distance from the center. Okay, let it denote with x or something. So center पे there is maximum intensity, and this band has some width. So as we go away from the central point, intensity is reduced, decreases continuously. Then there is a minima. After the minima, there is a bright band, but its intensity is now less than the central band. Its intensity is less. Then again, there is a minima, alternate minima, then again, alternate bright fringe, but its intensity is now less than this previous fringe. And so on. Intensity decreases continuously. Similarly, on the other side, bright fringe, alternate minima, dark fringe, bright fringe, dark fringe, and so on. So ये था pattern. But the slit is of small size. So यहाँ पे तो ठीक है, bright region आया, but इस region में और इस region में why there is light? If it is prohibited, because we know light travels in straight line, so it should be like behave like this. So the answer is light is bent. So light bends around an obstacle or aperture. And due to this bending, it goes into geometrical shadow of obstacle. Because if this is the slit, the shadow of slit will be above or below the slit. Or if there is an obstacle in the path of light, there is a source of light, you know
this region is dark. If this is the screen, there is shadow of this obstacle. Suppose you place some obstacle in the path of a candle. This is candle. And you place some book in the path of candle. On the wall, you get a larger shadow of the candle. So this region is dark and this region is bright. This is the case when obstacle size is quite large. But if you reduce the size of the obstacle, you will get a diffraction pattern. So that due to bending of light, light penetrates into the region of geometrical shadow of obstacle or aperture. Clear है ये point दोनों? Yes, ma'am. Okay, so condition क्या है diffraction ma'am. की? Condition of diffraction. Dimension of aperture or obstacle should be comparable to wavelength of incident wave. So if this is the width of slit or aperture or obstacle, then it should be either comparable to the wavelength or it should be less than wavelength. This is the condition for diffraction. Note करना है ये points. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, note this down. आराम से लिखो फिर आगे चलते हैं. वो ग्राफ सभी बनाना था ना. ग्राफ आगे आएगा, स्लाइड में है, तब बना लेना. ठीक है. सिंगल स्लिट का है वो पैटर्न एंड देन वी विल कम टू सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन पैटर्न. यू कैन ड्रॉ दैट. मैम तो लाइट का उस एपरेचर के बाहर जाने के कारण तो यही हुआ ना कि लाइट बेंड हो गया, इसलिए चला गया ऊपर. सॉरी, योर वॉइस वाज नॉट क्लियर. मैम लाइट बेंड हो गया इसलिए क्या बोला? मैम लाइट बेंड हो गया इसलिए हाँ, उस पूरा रीजन के बाहर भी कर रहा है. हाँ. सो कैसे बेंड हुआ और क्यों बेंड हुआ ये नेक्स्ट स्लाइड में बताते हैं. ठीक है. यस, बेंड हुआ, नहीं तो क्या होना था, जैसे मैंने बताया, अगर कैंडल के पाथ में यू प्लेस सम बुक, यू विल गेट अ लार्जर शेडो, और इसके ऊपर और नीचे क्या होता है, देयर इज ब्राइटनेस ड्यू टू द कैंडल. बट अगर यही साइज ऑफ ऑब्स्टिकल बहुत कम होगा तो ऑल्टरनेट बनेंगी फ्रिंजेस. ठीक है, थोड़ी ब्लर्ड होंगी बट ऑल्टरनेट बनेंगी. इसका मतलब लाइट गई है जहां पे उसको नहीं जाना चाहिए था. तो कैसे जाएगी? अगर लाइट सीधे ट्रेवल करती तो नहीं जा पाती. इसका मतलब लाइट इससे बेंड की. अगर यहाँ पे लाइट जा रही है इस रीजन में, इस ब्लू रीजन में, इस रीजन में अगर लाइट कहीं आ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, लाइट ऐसे बेंड करी या इस तरफ गई. यस मैम. जाना इसको ऐसे चाहिए था बट ये बेंड कर गई. तो क्यों करी और कैसे करी वो हम आगे देखते हैं. मैम इसका कारण ये हो सकता है कि ये सरफेस जो होगा वो रफ सरफेस होगा. नहीं. Excuse me, ma'am. यस, Ma'am, how does a small aperture enhance diffraction? it leads to bending. See, diffraction happens for large aperture also, but the bending angle is too small that it does not leads to any significant pattern or effect. So that is why I've written it occurs significant only. Otherwise, the bending angle is very small.
What are the examples for diffraction? क्या है examples diffraction के? बहुत ही कॉमन एग्जांपल आती है Rainbow. rainbow. Yes, the first one is colors in rainbow, spread of colors in rainbow. And second example मैंने कल बताई थी sound waves की. Yes, ma'am. So you can write this down. Complete हो गया ऊपर वाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So लिखो examples of diffraction. First लिख के जब ये first हो जाए तो मुझे बताना. I'll elaborate the sound one example. Siddharth, Ma'am? have you noted? Yes, ma'am. Okay, so बोलो second example. Yes, ma'am. Ma'am, sound Yes, wave. ma'am. बोल दीजिए. Yeah. So लिखो second, ability to hear sound. Ability to hear sounds coming from around, coming from around Yes, ma'am. a corner, a corner. नेक्स्ट लाइन लिखो साउंड वेव्स डिफरेंट. अगर कॉर्नर से साउंड सुनाई दे रही है इसका मतलब साउंड वेव ने बेंड किया, दैट इज व्हाई इट्स रीचिंग अप टू योर ईयर्स. क्या मतलब है? सपोज यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, ठीक है, साउंड वेव्स जो है दूसरे रूम से आ रही है एंड देयर आर ऑब्स्टिकल्स between you and other room. Till you are able to hear the sound, it means sound waves can bend around those obstacles. And why they are able to bend? Because sound waves diffract because their wavelengths are much larger. Ma'am, repeat. Ability to hear sounds coming from around the corner. Sound waves diffract because their wavelengths are much larger than the size of obstacle much larger than the size of obstacle or the corners opening or the corners opening. So what is the wavelength of sound waves? It's generally in the range of 16.5 meter. The sounds we can hear, the sounds which are audible to us, 16.5 to 16.5 into 10 raised to power minus 3 meter. You can see it's quite large. The size is in meters or millimeter. So this size, the size
obstacle, obstacle are readily available. जो नॉर्मल साइज है किसी भी ऑब्स्टिकल का या कोई ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है तो इस साइज में होगा, मीटर मिलीमीटर में होगा, तो साउंड वेव्स उससे डिफरेक्ट होंगी, सो दे कैन रीच अप टू आर readily available. इसीलिए साउंड वेव्स डिफ्रेक्ट करती है। एंड विजिबल लाइट जो है वो इतनी इजीली हम नहीं इनकाउंटर करते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। देयर आर स्टिल वेरियस एग्जांपल्स वेयर वी कैन see the diffraction patterns due to light waves also, visible light, but why we don't encounter frequently? Because lambda for visible light, क्या है wavelength range visible light की? Yes, अक्षर? 4,000 angstrom to 7,000. 4,000 to 7,000 unit. Angstrom. Angstrom. Ma'am, angstrom. नैनोमीटर क्या है यूनिट? Angstrom. Yes, angstrom. Angstrom. Yeah, so 4,000, 7,000 angstrom. Or we can write 4 into 10 is to power minus 7 meter to 7 into 10 is to power minus 7 meter. This is very Yes, ma'am. small size, right? Yeah. नॉर्मली हमें इस साइज के ऑब्स्टिकल या स्लिक्स और अपर्चर मिलना मुश्किल है, वेरी स्मॉल इन साइज। इसीलिए जो लाइट है वो उसका जो डिफ्रैक्शन है, ये बेंडिंग है, इतनी इजीली हम इनकाउंटर नहीं करते इन आवर डेली लाइफ, वेरी स्मॉल इन। मैम यस मैम जैसे आप बोल रही हैं बोलो तो वो हम लोग मैम हेलो बोलो। हाँ मैम हाँ जैसे बोलो। आप बोल रही हैं अभी अभी हम लोगों को पढ़ा रही हैं तो जैसे हम लोगों को सुनाई दे रहा है तो वो तो साउंड वेव नहीं होगा ना। अगर अगर आपका आवाज किसी दूसरे रूम में जा रहा है तो उसको कह सकते हैं ना, क्योंकि वो तो बेंड करके जा रहा है। ओ तो I'm not लाइक able to आपका get your आवाज question. Can you repeat your question? मैम जैसे आप बोल रही हैं अभी तो हम लोगों को सुनाई हाँ दे रहा है, तो इससे तो हम लोग नहीं कह yes. सकते हैं ना साउंड वेव। और अगर No आपकी no no. आवाज These किसी are not. दूसरे रूम में हाँ yes. Because these are two forms of waves. These are not sound waves which you are listening to me. There are ओके मैम। transmitter and receiver which are involved, right? यस मैम। You are correct. ओके मैम। That is why if you like don't put your earphones into your ears, you won't hear me. यस मैम। Only if you just put the earphones out from your laptop, then the waves will go like in that too in straight lines. ओके मैम समझ गया। अब
हाइजेंस प्रिंसिपल वैसे पढ़ के आए हो तुम लोग, है ना? Yes, ma'am. Uncertain. Okay, हाँ। ma'am. यस यस, हाइजेंस प्रिंसिपल इसके Yes, बाद ma'am. करेंगे। स्लोली बोलूंगी मैं, आराम से। तुम लोग पढ़ के भी आए हो तो इजीली समझ आ जाएगा। पहले तुम लोग बताओगे क्या होता है हाइजेंस प्रिंसिपल। लिख लिया ये सब? Uncertainty. Yes, ma'am. लिख लिया? Yes, ma'am. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं बोला मैंने बोला हाइजेंस प्रिंसिपल। Sure. अच्छा ये वाला हाइजेंस मैम वो वेवफ्रंट वाला वर्क ना। हाँ हाँ यस, हाइजेंस क्या वाला होता ये है वाला हाइजेंस प्रिंसिपल? क्या होता है बताओ? बता एक सो हमें एक्सप्लेन करना था कि लाइट जो है वो बेंड क्यों कर रही है। Why it is going like, instead of going like this only, why it's bending also. So ये एक्सप्लेन किया। हाइजेंस ने एक प्रिंसिपल दिया, और भी प्रिंसिपल्स थे, सक्सेसफुल हाइजेंस प्रिंसिपल था। इसने बोला कि जब प्राइमरी वेव फ्रंट आता है, प्राइमरी वेव फ्रंट मतलब जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, अगर वो पैरेलल कंसीडर करके चलते हैं इसमें हम पहले, वो आता है। तो जो हर पॉइंट है अपर्चर का, स्लिट का, इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेव्स। एक तो प्राइमरी वेव है ये, ठीक है। जब when it reaches on the slit or aperture, every point on the exposed part of the slit, सिद्धार्थ mute yourself, जब कुछ बोलना होगा तब कर लेना। So it becomes a source of secondary waves, and when a point becomes a source of waves, how does the wavefront look like? कैसा wavefront होता है point source का? spherical. Spherical. So हाइजेंस ने Spherical. बोला कि कि इंसिडेंट वेवफ्रंट आया। मैं स्लिट थोड़ा बड़ा बनाती हूँ। हाइजेंस ने बोला कि इंसिडेंट वेवफ्रंट आया जो कि प्लेन था। सो पैरेलल बीम ऑफ लाइट थी, पैरेलल रेज थी। जैसे ही वो इस स्लिट पे पहुंची तो हर जो पॉइंट था स्लिट का, एक्सपोज्ड पार्ट जो था, इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ वेव्स। तो उसने स्फेरिकल वेव्स जनरेट करना शुरू किया। मैं डिफरेंट पॉइंट्स की ना अलग अलग कलर से बनाती हूँ वेव्स। मैं डिस्टेंट पॉइंट्स ले रही हूँ, बट एक्चुअली बिल्कुल साथ साथ वाले जो पॉइंट्स हैं, वो हर एक पॉइंट जो है वो सेकेंडरी वेव्स जनरेट करेगा। ऐसे नीचे भी होंगे पॉइंट्स, तो मैं इनको ऐसे बना सकती हूँ, पॉइंट्स को सिर्फ कर्व्ड शेप बना सकती हूँ। समझ में आ जाएगा ना तुम लोगों को? जैसे अगर रेड वाले में मैं Yes, देखूं, हाँ, तो रेड वाले में देखें अगर, तो धीरे धीरे क्या होगा, वेवफ्रंट ऐसे मूव करेगा। सिमिलरली जो ब्लू वाला है वो इस तरह से मूव करेगा, और डार्क ब्लू वाला भी ऐसे। थोड़ा और क्लियर बनाती हूँ मैं यहाँ पे। इस पॉइंट से जो निकला, ऐसे गया, ऐसा स्प्रेड हो रहा है इनफाइनाइटली लाइट। यहाँ पे मैं बना नहीं रही हूँ, थोड़ा सा मैस हो जाएगा। इस पॉइंट से ऐसे निकल रहा है, सेकेंडरी वेव्स हैं ये। एक चीज नोटिस करी, ये सेकेंडरी वेवलेट्स कहाँ से निकल रही हैं? इन पॉइंट से, यानी कि प्राइमरी वेव फ्रंट से ही निकल रही है। प्राइमरी वेव फ्रंट आया, उसी से सेकेंडरी वेव जनरेट हुई। तो एक ही स्लिट से अलग अलग वेव्स निकल रही हैं। रेड कलर की जो वेव्स हैं वो डिफरेंट है देन ब्लू, लाइट ब्लू कलर, विच आर डिफरेंट फ्रॉम दिस डार्क ब्लू कलर। सो इन पॉइंट्स पे ये पॉइंट दिख रहा है, ये येलो कलर से, ग्रीन कलर से मैं बना रही हूँ ये वाला पॉइंट। इस पे दोनों सुपर इम्पोज कर रहे हैं, दो अलग अलग वेवलेट्स। सिमिलरली इस पॉइंट पे सुपर इम्पोज कर रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये वाला। तो सुपर इम्पोज कर रहे हैं, कौन सुपर इम्पोज कर रहा है? सेकेंडरी वेवलेट्स। वेवलेट्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स
ऑफ द, क्या पॉइंट है, कहाँ के पे पॉइंट लाई कर रहे हैं, एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द स्लिट, और यू कैन से, समझ में आ रहा है एक्सपोज पार्ट क्यों बोल रही हूँ मैं? प्राइमरी वेवफ्रंट जो है, इंसिडेंट वेवफ्रंट है, स्लिट के इस पार्ट पे वो फॉल कर रहा है, सो इट इज द एक्सपोज्ड पार्ट. सेकेंडरी वेवलेंथ्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ द स्लिट, या फिर स्लिट सिंपली स्लिट भी बोल सकते. सेकेंडरी वेवलेट्स क्या कर रही हैं, जैसे ये रेड कलर है और ये ब्लू कलर है, सो दीज आर सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द स्लिट. They are superimposed upon each other. Superimposed on each other, superimpose and give rise to diffraction pattern. Diffraction pattern. पैटर्न क्यों बोला और मैंने डिफ्रैक्शन क्यों नहीं बोला? डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट. तो यहाँ से कैसे पता चलेगा लाइट बेंड हुई? अब देखो, लाइट जो है अगर पैरेलल रेज जाती, सिर्फ वो इधर जाती इस तरह से, बट अब क्या हो रहा है, हर एक पॉइंट से सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही हैं, जैसे कि रेड, ब्लू, डार्क ब्लू. सो ये वाली जो लाइट है, ये रेड कलर जब यहाँ जाएगा, इस पोर्शन में तो जानी नहीं थी लाइट, ना ही इस पोर्शन में जानी थी. ये जो ब्लू कलर है फर्दर जाएगा इसके आगे, सो इस पोर्शन में भी प्रोहिबिटेड थी लाइट, राइट? इसका मतलब लाइट बेंड हुई. क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम. ये फर्दर Yes, ऐसे ma'am. जाएगा. ma'am. Yes, Yes, it ma'am. will go on and on, and it will reach the screen. सब वेवलेट्स जो मैम है बट धीरे रेड धीरे कलर की, इंटेंसिटी कम होते जाएगा ना, क्या बोल रहे हो? इसका इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगा ना. यस, इसीलिए जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं, दैट्स, या यू गॉट द पॉइंट नाउ. सेंट्रल फ्रिंज जो है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, एंड ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. यही तो डिस्टेंस है. ये जो डिस्टेंस है सेंटर से ही तो है, इस सेंटर से, स्लिट के सेंटर से. नाउ यू गॉट इट. Why the intensity of bright fringes keeps on decreasing as we move away from the center of the slit. क्लियर है अभी बाकी को भी? मैम सबको क्लियर हुआ? यस मैम. मैम ऐसा ma'am. इंटेंसिटी की वजह से बोलो. होता है या फिर ये सुपर पोजिशन की वजह से? तो जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी का जो पैटर्न बना वो कहाँ से आया? जब वेव सुपर इम्पोज करेंगी. सी, जो ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है, वेवलेट्स हैं, दीज आर वेव फ्रंट्स बेसिकली. इन पे क्रेस्ट भी हो सकता है. इट मींस दैट इन पॉइंट्स पे ऑल द वेव्स विल हैव सेम फेज. So either they all will like there will be crest for all of them or there will be trough for all of them. ठीक है? अगर सेम फेज वाली सुपर इम्पोज करेंगी तो कंस्ट्रक्टिव होगी, अगर ऑपोजिट फेज वाली करेंगी तो डिस्ट्रक्टिव होगी. इसीलिए ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस बनेंगी. और इंटेंसिटी यही बताती है, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो ब्राइट फ्रिंज है, इंटेंसिटी मिनिमम है तो डार्क फ्रिंज है. ये है ब्राइट फ्रिंज के लिए, क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी 0 और मिनिमम है अगर, इट मींस इट्स अ डार्क फ्रिंज. इंटेंसिटी ही तो है ये लाइट की, जो कहाँ पहुंच रही है, इंटेंसिटी है ये ऑन द स्क्रीन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन. पैटर्न समझ में आया? ये ग्राफ क्या बताता है? क्लियर हुआ? हमने यहाँ पे एक स्क्रीन Yes. रखी हुई है ताकि ये जो वेवलेट्स हैं ये स्क्रीन तक पहुंचे. ये ब्लू वाली सारी वेवलेट्स आगे जाएंगी, सुपर इम्पोज करेंगी रास्ते में, और फिर क्या होगा, पैटर्न बनेगा सुपर इम्पोज करने के बाद. और वो पॉइंट जो किसी भी पॉइंट पे हमें देखना है कि ब्राइट फ्रिंज बनेगी या डार्क फ्रिंज, फिर वो हम आगे देखते हैं कैलकुलेशन में कि कैसे पता चलेगा. यहाँ से ये पार्ट पोर्शन से ये क्लियर हुआ कि सुपर इम्पोज हो रही है. बेंडिंग कहाँ से Yes, पता ma'am. चल रहा है? इस पोर्शन से. यहाँ पे वेव्स हैं,
जहाँ पे वेव्स नहीं होनी चाहिए थी, इट मींस लाइट ने बेंड किया। सो इसीलिए मैंने कल बताया था कि डिफ्रैक्शन इज एक्चुअली, एक तो इसमें बेंडिंग होती है, ये हुआ डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसा बनता है, बेंडिंग के बाद जो लाइट है वो सुपर इम्पोज भी कर रही है, ये सुपर इम्पोज करके तभी हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है। सो एक और लाइन, ये अगर कुछ इसमें से लिखना है, अगर कुछ क्लियरली दिख रहा है तो लिख लो और मुझे बताना, मैं एक दो लाइंस और बताती हूँ, वो लिखना। Just let me know when you're done with this. मैम हर पॉइंट स्फेरिकल वेवलेट्स क्यों जनरेट करता है, स्फेरिकल वेवफ्रंट क्यों जनरेट करता है? ये हाइजीन्स का प्रिंसिपल था, उसने ही कुछ प्रपोज किया था कि जब भी पहुंचती है लाइट तो लाइट फिर पॉइंट्स में से सोर्स, इट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ओके मैम। यहाँ पे जो पैरेलल बीम आ रही थी लाइट की, वो स्लिट से पास करने के बाद पैरेलल बीम भी आगे जाती है? वो भी जाएगी, वो भी मैं बताती हूँ आगे। हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने डिफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्लिट करना है इसके आगे, ठीक है। उस डिफ्रैक्शन की एक तो डेरिवेशन चाहिए, हमें पता होना, हमें पता ये करना है कि ये जो पॉइंट P है ना, ये पॉइंट ब्राइट फ्रिंज का होगा या डार्क फ्रिंज का होगा, जैसे हमने इंटरफेरेंस में किया था, इंटरफेरेंस में स्टडी किया था ना पाथ डिफरेंस की हेल्प से। ये पॉइंट P जो होगा वो ब्राइट फ्रिंज बनाएगा या डार्क फ्रिंज, हमें सिमिलरली देखना है फॉर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। उसको देखने के लिए हमें डेरिवेशन करनी पड़ेगी। उसके डेरिवेशन में अगर हम ये प्रिंसिपल लेके चलेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, तो हम नहीं देख पाएंगे ये डायग्रामेटिकली। सो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम रे डायग्राम कंसिडर करेंगे। तो रे डायग्राम में क्लियर हो जाएगा कि जो प्राइमरी वेव फ्रंट है वो भी जा रहा है आगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है वो भी जा रहे हैं। तो उसमें और क्लैरिटी से बताऊंगी, अभी ये लिखो एक बार। क्योंकि देयर आर मल्टीपल रेज गोइंग इन ऑल, इसका क्या मतलब है इस वेव फ्रंट का स्फेरिकल, इट मींस ये जो पॉइंट था इसने ऐसे रे ऑफ लाइट क्या की, जनरेट करी, इसका यही मतलब हुआ ना, इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, एक्चुअली इस साइड भी जनरेट कर रही है, बैकवर्ड्स भी, हम वो कंसीडर नहीं कर रहे क्योंकि हमारा जो स्क्रीन है वो राइट की तरफ है। सो इट इज जनरेटिंग रेज इन ऑल डायरेक्शंस। सिमिलरली ये वाला जो पॉइंट है, दिस वन, इस वेव फ्रंट का यही मतलब है ना, इट इज जनरेटिंग रेज लाइक दिस। So you can see, imagine karo, there are different colors, red, blue, dark blue, and there are in almost infinite points on this slit. If you divide this slit into points, you know there will be infinite number of points, and there are infinite like number of rays going in all directions at different angles from each of these points. So imagine how much number of rays will reach on the screen, and you want to find the path difference between those rays so that you can calculate the intensity at point P. So to simplify all of that discussion, what idea was taken वो मैं इसके बाद बताऊँ। एक तो ये तीन सेट है रेज का, and also it is going in all directions and they are superimposing over each other reaching point P. So कैसे हम उस कैलकुलेशन को इजी करते हैं इसके बाद बताएं। एक और चीज लिखो इसमें, डिफ्रैक्शन occurs
या diffraction pattern is formed due to pattern is formed due to mutual interference Yes, ma'am. of secondary wavelengths. I'm writing over here also, and I'll explain this. Secondary wavelengths starting from the primary wavelength. क्या मतलब है इसका? Diffraction pattern is formed due to mutual interference of secondary wavelengths starting from the primary wavelength. Primary wavelength से ये secondary wavelengths निकली, रेड कलर की, ब्लू कलर की और डार्क ब्लू कलर की. इनकी इंटरफेरेंस से ही म्यूचुअल इंटरफेरेंस से डिफ्रैक्शन पैटर्न बना. क्लियर है ये पॉइंट? इंटरफेरेंस क्या था? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. एक और कंडीशन थी इंटरफेरेंस की, क्या थी वो? सेम फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट. या सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट, है ना? तभी Yes, ma'am. इंटरफेरेंस ma'am. होगी इफ द सोर्सेस शुड बी कोहेरेंट. हाँ, डिफरेंस ये था कि Coherent. इंटरफेरेंस में दो अलग अलग सोर्सेस होने चाहिए थे विच शुड बी कोहेरेंट टू ईच अदर. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो रेड कलर की वेवलेट है, these red color wavelets, this one, and these blue color wavelets and this dark blue, they should be coherent to each other, है ना? तभी सुपर इम्पोज करेंगी, इंटरफेयर करेंगी और पैटर्न बनाएंगी, जिसको हम डिफ्रैक्शन पैटर्न इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेंडिंग दी हुई है लाइट की. तो कोहेरेंट होंगी, ये कैसे पता चलेगा? क्यों होंगी कोहेरेंट ये? मैम एक ही सोर्स है. यस, एकदम करेक्ट. इनका जो सोर्स है प्राइमरी वेवफ्रंट जो है, इंसिडेंट वेवफ्रंट, सबका सोर्स एक ही है. तो अगर उसमें किसी कोई फेज चेंज आएगा, सब में इक्वल फेज चेंज आएगा. सपोज इंसिडेंट वेव ऐसी होगी, ठीक है, जो निकल रही है वेव, सेकेंडरी वेव्स हैं, वो इससे स्टार्ट होंगी, इस फेज से. तो जितना इसमें चेंज आएगा, सपोज ये अब्रप्टली अगर चेंज होगा तो ये वाले सेकेंडरी भी अब्रप्टली चेंज होंगे. तो फेज रिलेशन फिर भी मेंटेन रहेगा, फेज डिफरेंस जो है बस अगेन कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कोई भी अगर चेंज आता है इंसिडेंट वेव में, इक्वली रिफ्लेक्ट होगा वो किसमें? सेकेंडरी वेवलेट्स में. तो ये आपस में क्या होंगी? कोहेरेंट. मैम अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट हुआ तब तो या तो डार्क फ्रिंज सिर्फ बनना चाहिए या सिर्फ ब्राइट बनना चाहिए. फेज डिफरेंस कांस्टेंट है इन वेव्स में. कांस्टेंट मतलब रिलेशन मेंटेन रह रहा है. जब तक वो स्क्रीन पे पहुंच रही है, उनका फेज डिफरेंस किस चीज पे डिपेंड करेगा? जो वेव यहाँ से आई उसने कितना पाथ ट्रेवल किया, और जो वेव यहाँ से आई उसने कितना पाथ ट्रेवल किया, वो फेज डिफरेंस हम निकालते हैं. इनका आपस में जो फेज रिलेशन है वो मेंटेन्ड है. इसका मतलब ये है कि वो अब्रप्टली चेंज नहीं हो रहा है. जैसे मैंने एग्जांपल दी थी एक साइनोसॉइडल वेव की, कि इसका जो है फेज वो चेंज नहीं होता, बट अगर अब्रप्ट चेंज हो रहा है फेज में, लाइक वेव ऐसे जा रही है, इस चीज की बात करते हैं हम कि फेज रिलेशन इन वेव्स में मेंटेन रहता है. तो सपोज मैं मानते ये अगर फेज रिलेशन में बोल रही हूँ, ये कोहेरेंट है, सोर्सेज रेड सोर्स, ब्लू सोर्स, डार्क ब्लू सोर्स, ये आपस में कोहेरेंट है. इसका मतलब ये है, मैं एक मिनट इसमें इरेज करके बताती हूँ. ये इसके ऊपर, इसका मतलब ये है कि वेव्स जो है ये वाली, सपोज ये ऐसे अब्रप्टली चेंज होगी, ठीक है, तो ये वाली भी जो वेव है इस पॉइंट पे वो भी ऐसे अब्रप्टली चेंज होगी. इसका मतलब ये है, बट इनका फेज डिफरेंस किस चीज पर डिपेंड करेगा? कि इन्होंने कितना पाथ ट्रेवल किया पॉइंट पी तक पहुंचने के ऊपर. इस
जो पाथ डिफरेंस होगा तभी हम वो बाद में निकालेंगे, पाथ डिफरेंस कैसे होगा। अगर अभी भी ये डाउट है तो मैं इसको नेक्स्ट वाली स्लाइड में क्लियर करती हूँ। यहाँ पे बहुत मेस हो गया है, यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है। और यस मैम, यस। हाँ, तो नेक्स्ट वाली स्लाइड में बताते हैं। जब हम ये इसकी कैलकुलेशन करेंगे, ये पॉइंट आई विल रिमेंबर दिस टू एक्सप्लेन टू यू। लिख लिया ये सब? मैम मैम क्या मीडियम के कारण भी Yes, पाथ ma'am. डिफरेंस आ सकता है? क्या सेम मीडियम मीडियम में के तो कारण? भी पाथ डिफरेंस आ सकता है? अगर मीडियम चेंज नहीं भी हो हाँ, रहा है तो भी ओके क्या ओके, ये I'll पाथ explain. डिफरेंस आ सकता है? I'll explain it here only. It needs to be addressed this point. यहाँ पे बता दें। पाथ डिफरेंस क्यों आएगा ये देखो, ये स्लिट है, इसका एक पॉइंट ये है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जिससे हम वेव्स कंसिडर कर रहे हैं वो ये है, ये स्क्रीन है। यहाँ से एक वेव आ रही है, हम रे, मैं इसलिए बता रही थी कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम रे डायग्राम कंसिडर करेंगे, नो मोर वेव फ्रेंड्स। सो हम कंसिडर करेंगे एक इंसिडेंट बीम आ रही है पैरेलल रेज की फॉर्म में, ठीक है। यहाँ से रेज निकल रही है। चलो अभी यही एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने बोला कि हर एक पॉइंट से ऐसे रेज निकलेंगी, ये जो रेज दिख रही है इस फॉर्म में, ये वाली जो है एरोस की फॉर्म में जो मैंने बनाई है, सब तरफ से रेज निकलेंगी इस स्लिट में। इस पॉइंट से ऐसे निकलेंगी, इस पॉइंट से ऐसे निकलेंगी, इस पॉइंट से टेक डिफरेंट कलर। ये इस पॉइंट वाली हो गई, दूसरे पॉइंट वाली अगेन ये वाली हो गई। मुझे अब एक चीज बताओ, इन तीन कलर्स में से तुमको पैरेलल रेज दिख रही हैं? मतलब ये वाली रे देखो, ये वाली रे, यस मैम, मिड वाली थी। ये ब्लू कलर, इसके इसके यस, इसके पैरेलल ब्लू कलर की रे दिख रही है, यस मैम। इसके पैरेलल डार्क ब्लू रे। तीन पैरेलल रेज हैं। सिमिलरली हर एक पॉइंट से ऐसे पैरेलल रेज होंगी। तो हम क्या इन सारी रेज को, ये जो सारी रेज हैं, इनको हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, एक सेट ऑफ पैरेलल रेज ये हो गया। मैं अलग अलग कलर में ही बनाती हूँ, वही बेस्ट है। एक सेट ऑफ रेज जो है तो ये हो गया, दूसरा पैरेलल रेज का सेट ये हो गया, ये जो इंसिडेंट की डायरेक्शन में जा रहा है, और ये। तो मैं क्या करती हूँ, एक तो सेट ये हो गया पैरेलल रेज का, जिसके लिए थीटा क्या है 0 डिग्री। एक में थोड़ा सा एंगल इतना ले लेती हूँ, इस एंगल पे ये रेज हो जा रही हैं। मैंने अब अलग अलग कलर नहीं लिए, क्लियर है ना? ये वैसे जो तीन रेज बनाई है, ये रेड, डार्क ब्लू और लाइट ब्लू वाली की कॉरेस्पॉन्डिंग है ये रेज। एक ये सेट हो गया। तो अलग अलग थीटा अगर वेरी करेगा, थीटा को वेरिएबल मान लूं, तो ये रेज क्या होंगी, यहाँ से स्टार्ट करेगी एक इंसिडेंट रे, फिर ये वाली रे, ये वाली रे, ये सबके एक सेट बन जाएंगे। ये सेट, इनका ये ओरिजिन क्या होगा, ये डिफरेंट पॉइंट्स, जैसे ये रेड वाला पॉइंट, ये लाइट ब्लू, ये डार्क ब्लू। तो अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट सेट ऑफ पैरेलल रेज मान के चलूं, जिनका थीटा ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन में बोलूं कि वेरी कर रहा है, तो ये सारी रेज कवर हो जाएंगी जो निकल रही है स्लिट्स से। यस मैम। क्लियर है ये? इसमें कोई डाउट है तो मैं एक्सप्लेन करूं दोबारा से? नहीं मैम, ये पैरेलल रहेगा, ये क्लियर है। क्लियर है ये? यस मैम। यस मैम, यस मैम। दोबारा एक्सप्लेन करूं तो बताओ, करना है तो।
नहीं मैम क्लियर है। किसी को कोई डाउट है मैंने क्या बोला? हमें ये सारी रेज का रिजल्ट देखना है। जब ये सुपर इम्पोज करेंगी स्क्रीन के ऊपर तो कैसा पैटर्न आएगा। हमने क्या किया, अपनी डिस्कशन सिंप्लीफाई करने के लिए इन सब रेज को डिवाइड किया। हमने बोला एक सेट बनेगा इन रेज का, पैरेलल रेस। एक बनेगा इस इंक्लिनेशन पे, एक इस इंक्लिनेशन पे। हमने इंक्लिनेशन वेरी करके ऐसे पैरेलल सेट बना लिए। ये जो सारी रेस है हमें अब ये पता चल जाएगा ये सुपर इम्पोज करेंगी जब ये तो क्या पैटर्न बनेगा, अलग अलग इंक्लिनेशन वाली। तो एट अ टाइम हम एक सेट कंसिडर करेंगे जिसका एक थीटा होगा और हम देखेंगे ये सुपर इम्पोज करके पॉइंट पी पे मैक्सिमा बना रहा है कि मिनिमा बना रहा है। क्या करेंगे, हम एक जनरल सेट कंसिडर कर लेंगे पैरेलल रेज का जिनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा थीटा, और हम देखेंगे इनमें पाथ डिफरेंस कैसा है। और वो पाथ डिफरेंस कैसा आएगा वो बताने लगी थी मैं, वो भी यहाँ पे बताती। इसको ड्रॉ करना है तो कर लो। चलो आगे। यस मैम। ओके Yes, ma'am. सो मैं बता ही Yes, रही थी ma'am. कि पाथ डिफरेंस क्यों आएगा, है ना, वो बताना है। एक ये वाली रे मैंने एंगल थीटा वाली, ये स्क्रीन है, मैंने ये पॉइंट पे देखना है ब्राइट बनेगा ये डार्क, यहाँ से ये जा रहा है, ये जा रही है। सिमिलरली इस पॉइंट से या इस पॉइंट से ये वाली रे जा रही है। इस पॉइंट से ये वाली रे जा रही है। ध्यान से देखो ये पाथ कम ट्रेवल कर रही है, ब्लू वाली ज्यादा ट्रेवल कर रही है। क्लियर हुआ डायग्राम से? यस मैम। Red, Yes, ma'am. red ray is traveling lesser path as compared to the dark blue one, and this will lead to path difference between rays, and path difference is equivalent to phase difference, as you know the relation between the two. इसलिए आता है phase difference। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे हम इस पे, हमें पता है यहाँ से ये और ये इक्वल है, इसका मतलब पाथ डिफरेंस इसके इक्वल होगा, जैसे हमने पिछले वाले केस में किया था इंटरफेरेंस के केस में। तो क्योंकि इनका पॉइंट का डिस्टेंस अलग अलग है इस पॉइंट पी से, इसलिए ये पाथ डिफरेंस जनरेट होता है। यहाँ तक जो था ये वाली रेस थी ये सेम पाथ ट्रेवल कर रही थी क्योंकि पैरेलल थी रेस। यहाँ पे सेकेंडरी जनरेट हुई है तो आई तो इंसिडेंट वेव फ्रंट से ही ना, तो इनके बीच में पाथ डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि इन्होंने ये डिफरेंट पाथ ट्रेवल कर रही हैं while reaching point P on the screen. Is it clear now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और एक किसी का क्वेश्चन था कि इंसिडेंट वाली आगे जाएगी जब थीटा इक्वल टू 0 वाला सेट कंसिडर करेंगे, दिस विल लीड टू कंसिडरेशन ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वाली बीम भी इंक्लूड हो जाएगी इसमें। और थीटा जितना ज्यादा होगा मतलब लाइट उतनी बेंड करी है, थीटा जितना ज्यादा होगा, सपोज ये वाला मैं सेट ले रही हूँ
जितना ज्यादा थीटा मतलब उतनी ज्यादा बेंडिंग हुई है, मतलब उतनी ज्यादा डिफ्रैक्शन हुई है। तो इसको क्या बोलते हैं, थीटा को एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। तो इंसिडेंट वेव फ्रंट के लिए थीटा 0 है, मतलब एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन 0 है, मतलब वो अनडिफ्रैक्टेड बीम और इंसिडेंट बीम। आयुष, आर Yes, यू ma'am. देयर? Yes, ma'am. So is it clear now? Still we have not reached to single slit calculational part. That thing, the things which are Okay, remaining fine, will be ma'am. clear after that. Yeah. Okay. मैम वेवलेट्स और वेवफ्रंट में क्या डिफरेंस होता है? Yes. मैम वेवलेट्स और वेवफ्रंट में क्या डिफरेंस क्या होता है? बोल रहे हो? मैम वेवलेट्स और वेवफ्रंट में क्या डिफरेंस होता है? Wavelets are waves. वेवलेट्स जो है वो किसको बोलते हैं, वेव्स को। और वेव फ्रंट क्या है, जिन पॉइंट्स पे वेव्स का फेज सेम होगा, दीज आर वेवलेट्स। वेवलेट्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी को डिनोट करके, ओके सो प्राइमरी जो है उनको हम वेव्स बोल रहे हैं क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी वेव्स निकल रही है, इसलिए हम सेकेंडरी वाली को डिनोट कर रहे हैं किस टर्म से, वेवलेट्स की टर्म्स में। और वेव फ्रंट यू नो, अगर ये वेव है, डिफरेंट डिफरेंट वेव्स है, तो कौन से पॉइंट्स पे इन वेव्स का फेज जो है सेम होगा, उस लोकस को क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। इस केस में वेव फ्रंट क्या होगा, प्लेन, क्योंकि इस प्लेन के ऊपर इन सब वेव्स का फेज सेम होगा। अगर कोई पॉइंट है जिससे वेव्स निकल रही हैं, सपोज दिस इज द पॉइंट एंड वेव्स आर एमिनेटिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, सो किस सरफेस के ऊपर, किस लोकस के ऊपर वेव्स का फेज सेम होगा, दैट विल बी स्फेरिकल इन शेप। क्लियर है? ये वाले जो पॉइंट्स हैं इन सब पे वेव्स का फेज सेम होगा। तो स्फेरिकल सरफेस जो होगा उस सब के ऊपर या तो सब वेव्स की क्रेस्ट फॉल करेगी या सब वेव्स की ट्रॉफ फॉल करेगी, अगर पॉइंट सोर्स है तो। और अगर लाइन सोर्स है जैसे कि स्लिट, तब कैसा होता है वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल, क्योंकि उस केस में सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर सब वेव्स का फेज सेम। फेज सेम होने का मतलब है कि या तो सब वेव्स का उस तरफ पॉइंट पे क्रेस्ट होगा ऐसे, या फिर उस पॉइंट पे क्या लाई करेगा, ट्रॉफ, और इन बिटवीन भी पॉइंट हो सकता है। अगर किसी का ये पॉइंट लाई कर रहा है उस लोकस के ऊपर, दूसरी वेव का भी यही पॉइंट लाई करेगा उस सरफेस के ऊपर, लोकस के ऊपर। कौन से लोकस के ऊपर, जिसको हम वेव फ्रंट बोल रहे हैं, जिस सरफेस को हम वेव फ्रंट बोल रहे हैं। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I'm taking your attendance now. मैम Yes, मैम क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी तो बोलो। काफी देर से क्लास हो रही है अभी। पता नहीं क्यों, कोई टेक्निकल इशू था तो क्लास ही नहीं ज्वाइन हो रही थी, ना मैथ की हुई ना ही अभी फिजिक्स की हो रही थी। ओके ओके फाइन, जो डाउट होगा कल पूछ लेना, ठीक है? ओके मैम। ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, ma'am.